Good morning everyone, and today we are going to learn how to plot a support on our chart, how to neat and clean our chart, and minimum indicators or minimum tools how we are going to use. So basically we are going to start from how price action works. Okay, so first of all I am going to tell you the structure of a market. See, so how market works. See, I will teach you as a path. See how market goes. Market go higher high, market go lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. This is how market works. So what is the higher high? It will act as a support, sorry, resistance. It will act as a resistance, it will act as a resistance, it will act as a support. जो लोअर लोज है हमारे वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, और जो हायर हाइज है हमारे वो एक्ट करेंगे एज अ रेजिस्टेंस की तरह. ओके, सेकेंड थिंग अबाउट इट. सो द हायर हाइज वर्क एज एस एल लेवल्स. सो ये अगर हायर हाई है तो कोई सेलर ने यहाँ पे सेल किया होगा तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होगा. वैसे ही सिंपल जिस बायर ने अगर इधर बाय किया होगा तो उसका एस एल यहाँ पे पड़ा हुआ होगा. ठीक है, ये इतना लॉजिक समझ में आ गया. तो अभी हम देखेंगे कि हमें कौन से लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं. तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करते हैं. तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और अभी हम आपको सिखाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे करने हैं इसके ऊपर. चलो, तो अभी ये एक एग्जांपल के लिए दिए हैं. हम रिलायंस के चार्ट पे देखते हैं. रिलायंस के चार्ट पे गए हम. वन डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है. हाँ, वन डे की टाइम पे क्यों शिफ्ट करना है उसका रीज़न बताता हूँ, रुको. ये बेसिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इतना भी कर दिया तो भी बहुत है, ज़्यादा खुद को ये करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली वी यूज़ टू टूल्स, horizontal line and horizontal ray, for marking our levels, support and resistance. So how we will going to mark? तो horizontal line याद रखो, alt plus h, alt plus h. तो हम alt plus h यूज़ करते हैं. हम लिख के ही दिखा देता हूँ यहाँ पे. ओके, alt plus h for horizontal line, and horizontal ray alt plus z. So we will use this for plotting the support and resistance, or is alt plus h for the higher level one day frame, and alt plus z for the one day frame, intraday level, which is I used. Okay, I am just giving you a short and simple explanation. Okay, let's see. So now we will plot first horizontal line on one day frame. So what is the level of the Reliance? Is 1605 is the higher level. So alt plus h, one second, click alt plus h. We will mark this as this is the support. As I previously say that market follows higher high higher low. तो higher high कौन सा है? ये से ये जो है lower low है, ये है higher high. तो ये एक higher high, तो it will act as a support and resistance, sorry, एंड इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट. देख सी, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट नीचे आया. ओके, सो वी विल गोइंग टू मार्क मोर लेवल्स लाइक दिस. ऑल्ट प्लस एच, ऑल्ट प्लस एच, सी. So we mark the levels where market took resistance and support. So now we will see on 50 minutes time frame. One day time frame alt plus h, horizontal line. अब now we will going to analyze chart on 50 minute time frame. ओके, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है हमें, और सिंपली ओपन द चार्ट, zoom it. What is happening on 15 minute time frame? So we will zoom it little bit. Okay, more. Okay, so this is the support levels. Okay, so now we will going to study about the horizontal ray. So horizontal ray same like alt plus z. Alt plus z, how? Alt plus z, shortcut keys. So you need to know, do not click the this thing. You can click it from here and take it, but you need to take it again and again. So I used to keys for these levels. So this is the day high,
resistance and this is a day low resistance support, sorry. Okay, so see, I will give you a short things about market opening and market closing. Wherever market opens, see, market open here and close here, so closing act as a resistance if it close above the level of today's level. Okay, opening to अगर कल की क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट ओपन करता है तो ये जो लेवल है, जैसे कि मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सॉरी, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर नीचे काम ओपन होता है मार्केट। तो अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है समझो, तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। नीचे ओपन होता है तो रेजिस्टेंस, ऊपर ऊपर होता है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स वगैरह कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, उसमें मैक्सिमम टर्न लॉस होता है क्योंकि वो सारे लोगों को पता है कि कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं। बट ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ कोई नहीं खेल सकता। ऑपरेटर भी होगा ना, उसको इसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको पता है बायर्स कहाँ पे बैठे हैं, सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं। यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं कि पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा दिया, स्टॉकेस्टिक लगा दिया, वीआईप लगा दिया, यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ पे बाइंग कर ली। क्यों करना है इतना सारा चीज़? इधर अगर तुम बाइंग करोगे, एसएल चला गया तो तुम्हारा पूरा दिन खराब है। तो उससे अच्छा प्राइस एक्शन को समझो और एक ही ट्रेड प्लान करो दिन का, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया तुम लोगों को बता के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन अभी हम कवर अप करते हैं। हम रेक्टेंगल क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं ये दो टूल्स को एक साथ यूज़ करता हूँ। कैसे करता हूँ, सी, so we will go into Sensex, now we will see how market working. okay, मार्केट यहाँ से डब्ल्यू बना सकता है, अपन ट्रेड भी लेने वाले यहाँ पे, बट अभी ये एजुकेशनल पर्पस है तो मैं अभी समझाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल गोइंग टू डू, how to market. See, I market here but I will give you a short explanation how Fibonacci retracement use. important levels क्या है, 38, 50 और 61। पॉइंट 50 से मार्केट हमेशा अगर आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, नहीं तो ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेके नीचे आएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है समझो एक बार के लिए, मार्केट अभी ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले, देखो यहाँ पे हुआ है सेम चीज़, यहाँ पे आया मार्केट, ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ये जो वीक है ना इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इस लेवल का रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, 50% को ब्रेक करके मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाता है तो वो उधर ट्रेड लेना ही नहीं है, भले ही कितना ही मार्केट ऊपर चला जाए। हमको हमेशा मार्केट के पैटर्न को फॉलो करना है, विच इज़ हायर हाई हायर लो और रिट्रेस। तो रिट्रेस आने के बाद ही मार्केट में ट्रेड बनेगा, नहीं तो ट्रेड नहीं बनेगा, वो दिन नो ट्रेड डे होगा। तो ये मैं बेसिक बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं वो मैं एक सिंपल से वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ। ओके, तो 50% पे मार्केट कैसे आएगा, एक एग्जांपल के लिए पाथ का यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। ये 50% है, मार्केट यहाँ पे आया, 50% को ब्रेक किया, आया, ब्रेक हुआ, रिट्रेस्ट हुआ, ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये होता है बेसिकली प्राइस एक्शन। अगर कुछ केसेस में क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट मार्केट ब्रेकआउट करके इधर तक आ जाता है तो उधर हमारा ट्रेड बनता ही नहीं, क्योंकि देखो ना प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक ऊपर जाएगा, डायरेक्ट चला गया तो ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से सब रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे ही हुई है। सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, ये सिंपल चीज़ समझ में आ गई। 50% का रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा या तो नीचे ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेके नीचे जाएगा। अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक जोन के अंदर फंसा है। ओके, तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बेसिक रूल। ओके, सो इसको प्लॉट कैसे करना है, अभी इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ एक बार फिर से, मतलब आप सबको भी समझ में आए कि मैंने किया क्या है यहाँ पे। सो वेन एवर मार्केट ओपन्स डाउन, जो भी क्लोजिंग प्राइस है एक नेगेटिव कैंडल बन ले, जिस साइड जाता है 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल है तो उसका लो मार्क करके हाई को मार्क करना है, ठीक है। फर्स्ट 50 मिनट कैंडल का सी 15 मिनट की कैंडल को मार्क है, 15 मिनट ही है ना, नहीं ये सॉरी 50 मिनट है, माई मिस्टेक। 15 मिनट की कैंडल पे जाएंगे, हाँ सी दिस इज द 50 मिनट कैंडल। सो वेयर इज द 50% हेयर, वी मार्केट, ये लेवल्स बस रखने, सेटिंग देख लो आप एक बार तो आप खुद से मार्क कर पाओगे। देखो ये सेटिंग्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या रखा है मैंने परसेंटेज वगैरह लेवल्स में।
ये लेवल्स को रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। सो what we will going to see next, rectangle. So rectangle will use as a 50% level marking zone. We will mark it and then we will delete this Fibonacci because we don't need, we need our chart to be clean. Okay, this is our first rule. हमें अपने चार्ट को भर के नहीं रखना है, एकदम क्लीन एंड नीट रखना है, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा लेवल फॉलो करे कौन सा लेवल नहीं फॉलो करे, उससे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बेसिक चीज़ रखना है। अभी मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को निकाल देता हूँ, निकाल दे इसको, ओके। और इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ, गोल्डन जोन होता है अपना यहाँ पे, तो इसको गोल्डन जोन कर दिया, ओके। इसको इसको फिलअप कर देता हूँ ग्रीन से। हाँ, ये ग्रीन जोन हो गया, ये अपना 50% लेवल हो गया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक किया 50% को और अभी ये यहाँ से रिट्रेस ले रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो मैं शॉर्ट करेगा, नहीं तो इसके ऊपर जाके रिट्रेस लेता है। यहाँ पे आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ने स्विंग निकाला तो हम ऊपर के साइड प्लान करेंगे। दिस इज अवर सिंपल रूल, ओके, अंडरस्टूड। 1 2 3 4 रूल। और दिस इज द नॉर्मल लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। फिर भी एक बार दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। So this is the basic tools I use, and सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं, मैं यही चीज़ों को फॉलो करता हूँ, दूसरा कोई भी चीज़ मैं फॉलो नहीं करता। बेसिकली इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग टू फॉलो द चार्ट वेयर इज लाइक टू मच इंडिकेटर्स, टू मच चार्ट पैटर्न्स। यू नो नीड टू स्टडी दैट मच, यू जस्ट नीड टू नो प्राइस एक्शन, भाव कैसे काम करता है वही तुम लोगों को समझना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा खरीदना है, ऐसा नहीं है। तुम प्राइस एक्शन को समझो, तो स्विंग लो को समझो, स्विंग लो कैसे काम करता है। जब तक स्विंग्स नहीं निकलते तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। कोई भी अननेसेसरी हैमर पैटर्न दिख गया, ये दिख गया, नहीं करना है फॉलो। कैंडल स्टिक तब यूज़ करनी है जब इट विल ऑक्योर एट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस। बीच में कहीं भी हैमर बन रहा है नहीं करना है फॉलो। भाई कुछ भी बनता है मार्केट में, कोई भी कैंडल बनेगी, तुम नहीं बता सकते हैमर बनेगी। देखो इधर हैमर बना है, ये पॉइंट पे दिखा देता हूँ, इधर हैमर बना है, इधर से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों आ रहा है? तो इट विल नॉट that much important that which candlestick pattern is forming it. The main thing is where it's forming, it's on support or resistance. तो ये चीज़ें तुम लोगों को समझनी है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं बताता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन एनालिसिस, पीसीआर डेटा। पीसीआर डेटा के बाद अपना आएगा इंडिया विक्स, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, कैपिटल कैसे फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर बेसिक अपना चार्ट कैसा दिखना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, ये इस वीडियो में मैंने कवर अप कर लिया है। होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप you all will understand what I'm trying to say or teach you. But thank you for watching. Thank you. Like, share or subscribe the channel please, it will support me for making more videos. Thank you. सो अभी मेरा ट्रेड लेने का प्लान भी हो रहा है, सो मैं अभी बंद कर रहा हूँ। अभी 11:30 12:30। हाँ, और ये भी चीज़ें बताऊँगा कि कौन सा टाइम बेस्ट रहता है कि ट्रेड लेने के लिए। कोई भी टाइम पे नहीं लेना है, मार्केट स्लो रहता है, थीटा डीके करता है, वो सारी चीज़ें भी मैं कवर अप करूँगा। और क्या है कि बस सेलिंग और बाइंग, बस बाइंग पे नहीं टिके रहना है कि मेरे पास 10-12 हज़ार का कैपिटल है। कैपिटल ना मैक्स टू मैक्स है ना 70-80 हज़ार तो रखो ही रखो, जिससे क्या होगा ना कि तुम हेज करके सेलिंग कर पाओगे। वो हेजिंग का पॉइंट भी मैं क्लियर करने वाला हूँ वीडियोज़ में कि हेज करके कैसे मार्जिन लिया जाता है, जिससे हम लोग 50,000 में सेलिंग करके कैसे दिन का एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, छोटा प्रॉफिट बना के ट्रेड्स कर सकते हैं, प्लान कैसे कर सकते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला, क्लियर करने वाला। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही बस। अभी मेरे को मार्केट देखना है, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।